اور اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع بارہمولہ پٹن کے وانی گام بالا میں ہوئے انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کیا گیا۔ اس انکاؤنٹر میں آرمی کے 2 اور جموں کشمیر پولیس کا 1 جوان بھی زخمی ہوئے ہیں اور آرمی کا 1 جاسوسی کتا بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ انکاؤنٹر آج اعلی صبح اس وقت شروع ہوا تھا جب یہاں سیکورٹی فورسز کو ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ اس کے فوراً بعد اس علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا اور سیکورٹی فورسز نے جب اس مکان کی نشاندہی کی جس کے اندر ملیٹنٹ چھپا تھا اور جو ہی سیکورٹی فورسز اس مکان کے نزدیک گئے تو ملیٹنٹ نے فائرنگ کر دی۔ اس طرح یہاں سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹ کے بیچ انکاؤنٹر شروع ہوا۔ اس دوران وانی گام بالا کے تمام راستوں کو سیل کیا گیا تھا اور پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا۔ دیکھیے، آج صبح وانی گام علاقے میں یہ انکاؤنٹر ہوا اور مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد وہاں پہ جوائنٹ فورسز پہنچیں اور وہاں پہ جو ہے انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا، جبکہ جو چھپا ہوا ٹیررسٹ تھا اس نے فورسز پہ فائرنگ کی اور اس میں ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ مارا گیا ہے اور ہمارے آرمی کے 2 جوان اور پولیس کا 1 جوان جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں اور ایک سنیفر ڈاگ جو ہے اس کا لاس ہوا ہے آپریشن میں اور ابھی تک اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے اور ہمارے ایفرٹس لگے ہوئے ہیں کہ اس کی پہچان کی جائے۔ ریکوری وہاں سے ہماری ایک AK-47 3 میگزین اور 1 پاؤچ ریکور ہوا۔ انکاؤنٹر ختم ہو گیا؟ انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے پائلٹ فلائنگ آفیسر ادوتیہ بال کی آخری رسومات آج ادا کر دی گئیں۔ جموں کے آرس پورہ علاقے میں ان کے آبائی مقام پر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں وداع کیا گیا۔ آخری رسومات میں لوگ بڑی تعداد میں شریک تھے اور شہید فوجی جوان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک رپورٹ۔ جیسے ہی فلائنگ آفیسر آنجہانی ادوتیہ بال کا جسد خاکی آرس پورہ میں ان کے آبائی گاؤں پہنچا تو ہزاروں لوگ انڈین ایئر فورس کے بہادر افسر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ اہل خانہ، عزیز و اقارب اور گاؤں والوں نے بڑی تعداد میں بہادر افسر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران گاؤں میں ہر طرف اداسی چھائی رہی۔ انڈین ایئر فورس کے افسروں اور جوانوں نے ایئر فورس کی گاڑی میں ادوتیہ بال کا جسد خاکی آبائی مقام پر لایا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے نم آنکھوں کے ساتھ بہادر افسر کو آخری سلامی دی۔ سینکڑوں لوگ بہادر فوجی افسر کے آخری سفر میں شامل تھے۔ وہ بھارت ماتا کی جے اور ادوتیہ امر رہے جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ بہت اچھا لڑکا تھا سر، ہر ایک بندے کے ساتھ رسپیکٹ کرتا تھا۔ جب چھٹیاں تھا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کوئی پڑھا لکھا ہے جیسے ہر بندے کی رسپیکٹ کرتا، بوڑھا ہو جہاں بڑا ہو، چھوٹے بڑے کی سب کی رسپیکٹ کرتا تھا اور جہاں بھی جاتا تھا ممی پاپا کے ساتھ کوئی فالتو ایسے ویسے ریلیشن نہیں تھے کسی کے ساتھ، مطلب کسی کے ساتھ وہ غلط سوسائٹی نہیں تھی۔ پنڈ میں دکھد گھٹنا ہو گئی ہے، چھوٹا سا بچہ تھا نکل کے کتنی دور پہنچا، بعد میں بلاسٹ ہونے کے کارن ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ ہاں جی، دیش کے لیے انہوں نے شہادت دی۔ ہاں سر ضرور، اس سے بڑا بلدان اور کون سا۔ ایسے ان کو چینج کرنا چاہیے، ان کو جو بھی ان کے پاس چھوٹے موٹے بیمار پڑے ہیں ان کو بلاسٹ کر کے کہیں نہ کہیں اس کا ریپوٹیشن چینج کرنی چاہیے تھوڑی۔ IAF اہلکاروں کے ساتھ ساتھ سول انتظامیہ کے افسران بھی جلوس جنازہ میں شامل تھے۔ خراب موسم کے باوجود لوگوں نے بڑی تعداد میں کاروں، موٹر سائیکلوں میں سوار ہو کر اور پیدل بھی جلوس میں شرکت کی۔ شہید آنجہانی ادوتیہ بال کے اسکول کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے سینک اسکول نگروٹا کے ان کے ٹیچرز نے کہا کہ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا اور مسلح افواج میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ Words fail me to describe the loss we as a Naxon fraternity have received with the passing of Advitya Bal, and our prayers and our are with the family, and we pray that God Almighty give strength and courage to Advitya's family and his dear ones. پوری ہمارے اس ایریے کے، میں بھی دبلیڑ گاؤں کا ہوں بیسیکلی، جو میں رہتے ہیں، ہمیں بہت ہی یہ اس میں دکھ پہنچا ہے، بہت ہیوج لاس ہوا ہے، فیملی کے ساتھ بھی
और हमारी फोर्स का भी लॉस हुआ है, देश का लॉस हुआ है। तो हम यहाँ यही प्रे करते हैं कि भगवान ऊपर वाला इसकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को इतनी हिम्मत जुटाने के लिए वो क्षमता पैदा करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना। शहीद अद्वितीय बाल की आखिरी रस्मात उनके आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गईं। याद रहे कि 28 जुलाई को राजस्थान में मिग 21 गिरकर तबाह होने के बाद अद्वितीय बाल अपने को पायलट के साथ फौत हो गए थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में और नम आंखों के साथ आज लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर अद्वितीय बाल को आखिरी सलामी दी गई। लेकिन ये सच बात है कि अपनी शहादत के साथ अद्वितीय बाल कई सवाल छोड़ के चला गया है, और सबसे बड़ा सवाल सरकार से है कि आखिर अगर मिग 21 इस काबिल नहीं रहा कि उसकी परवाज़ की जाए या उसको सर्विस में बदस्तूर रखा जाए, तो इसको IF में अभी तक क्यों रखा गया है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, RSपुरा, जम्मू। शुमाली कश्मीर के कांडलू पट्टन के रहने वाले आर्मी जवान इकबाल हुसैन नेत्तो की लाश आज जो ही उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। वाज़ेह है कि इकबाल हुसैन उधमपुर में ड्यूटी के दौरान हरकत क़ल्ब के बंद हो जाने से फौत हो गए थे। बताया जाता है कि इकबाल बहादुर फौजी थे और गुज़िश्ता 15 बरसों से फौज में तैनात थे। कांडलू में फौजी एजाज के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इकबाल वाहिद कमाऊ थे। इनके अहल खाना ने सरकार और फौज की आला कमान से अपील की है कि इनके घर के किसी फर्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। महाराज करनस गवर्नमेंटस अपील करान बदल गस नौकरी अमिस गई 18 वरी मतलब नौकरी करा वनकस आर्मी मज वो युत योतन सहर आज पगह यी आज गई अमिस 2 वरी करो अमिस कुन जाए वन बह कर मतलब यमो मकलो यह सहर तुल यह तुल त्राय मतलब यह सहर वनकस पीर मज बोज मोन बेम बुजुर्ग सह गवर्नमेंट गस हिसाब किताब कर बे गरीब बे गस अकिस नौकरी। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से अहकाम मिलते ही कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की अटैचमेंट खत्म करने के हवाले से सर्कुलर जारी होने के साथ ही जिला अस्पताल बांडीपुरा में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक ने 20 मुलाजमीन के डी अटैचमेंट का ऑर्डर जारी किया है। इन 20 मुलाजमीन में 5 डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले के 15 मुलाजमीन शामिल हैं। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को डी अटैच करने से अस्पताल के कामकाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिला अस्पताल बांडीपुरा पहले ही अमले की कमी के मसले से जूझ रहा है। इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के वादे के मुताबिक अहम साजो सामान फराहम किया गया है, जिससे आम लोगों में खुशी पाई जा रही है। यह अस्पताल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हादसाती सेक्टर में वाक़ है। बानिहाल, पोगलपरस्तान, नील और खड़ी तहसीलों की 2 लाख से ज़ायद आबादी और खूनी सड़क हादसा से निपटने के लिए इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल निहायत ही अहमियत का हामिल है और आए रोज़ सड़क हादसा से निपटने के लिए यहाँ कई तरह की अहम मशीनरी की कमी थी, जो अब पूरी की गई है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीमुर रहमान ने 30 मई को दौरे बानिहाल के दौरान बेशतर वादे किए थे और इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में 60 किलोवाट की सलाहियत वाला पावर बैकअप, डिजिटल एक्सरे, थायराइड और खून का टेस्ट करने के लिए एनालाइजर के अलावा डिजिटल यूनिट को बानिहाल अस्पताल भेज दिया है और इस अस्पताल की नई इमारत में नस्ब भी कर दिया गया है। हॉस्पिटल जो है आज बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बीमार जो भी आ रहे हैं वो आज मुतमईन है। और डिजिटल एक्सरे, खासकर मैं डिजिटल एक्सरे की बात करूँगा, हमारे पेशेंट जो यहाँ पे डिजिटल एक्सरे की जो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी वो उन्होंने यहाँ पे उपलब्ध कराई। उसके लिए मैं उनका ज़ाती तौर शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे 2-3 डॉक्टर यहाँ से चले गए हैं, अब उनकी कमी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पे अभी स्टाफ की शॉर्टेज है, जिसका
पूरा होना जरूरी है। जो एक्सीडेंटल अस्पताल है, जो मतलब रामबन से बानाल तक ये सारा ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, यहाँ पे मजबूरी किसी वक्त इमरजेंसी हो सकती है। उसके लिए यहाँ का स्टाफ और यहाँ में सामान का भरपूर होना ज़रूरी है ताकि अच्छी तरीके से ये मतलब अस्पताल। बटसुमा डंगी वाचा रफीआबाद में रेत निकालने के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद दब गए। वाक़े के फौरन बाद पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से खुदाई के बाद इन्हें बाहर निकाला। इन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्मियों में से एक शरीफुद्दीन शाह साकिन बटसुमा डंगीवाचा को तशवीशनाक हालत में GMC बारामूला रेफर कर दिया। दीगर 2 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पीएमओ के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि हर घर तिरंगा से किसी को भी और साथ ही किसी भी सियासी पार्टी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के हर शहरी को अपने कौमी परचम पर फख्र होना चाहिए। सांबा में मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने ये बातें कही। लगता है कि ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। तिरंगा हम सबका है, प्रत्येक भारतवासी का है। वर्ग कोई हो, समुदाय कोई हो, धर्म कोई हो, जात कोई हो, मजहब कोई हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, कोई कह सकता है कि तिरंगा उसका नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि अगर मोदी जी के आह्वान पर हमें इस बात का एहसास करवाया गया कि हमारे सामने हमेशा तिरंगा खड़ा रहे, हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक, हमारी भारतीयता का प्रतीक, और हमें सदा हमारा मनोबल, हमारा स्वाभिमान बढ़ाने का काम करता रहे, तो भला इससे अधिक, इससे बेहतर और क्या सोच सकते हैं। शोपियां जिले के ढोनी शर्माल इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला शोपियां में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने पार्टी कारकुनान के अलावा आम लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद लोगों को हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडरान जिनमें मंजूर अहमद, मुजफ्फर, ताहिर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट शाहनवाज अहमद और दीगर कारकुनों ने मुकम्मल तौर पर इतफाक किया और यकीन दिलाया कि तमाम घरों पर कौमी परचम लहराया जाएगा। ये हमारे पास देखो कम से कम 100 कार्यकर्ता आई है, तो हम इसी बारे में इस सिलसिले में हम मीटिंग करें कि कहाँ हर घर हमें ये तिरंगा लहराना है। इसके लिए यही हर घर मैसेज है कि ये तिरंगा जो ये हमारी शान है, देश का निशान है, ये देश का परचम है। ये मेरी बात परचम नहीं है, बीजेपी का हम बीजेपी की तरफ से इसमें प्रोग्राम में शामिल हैं। हम हर घर तिरंगा लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कारकुन सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों से डाक बंगला संबल में जमा हुए और सोनावारी में हर घर तिरंगा पर मीटिंग की। इस प्रोग्राम की सदारत भारतीय जनता पार्टी के रियासती इंचार्ज डॉक्टर फरीदा खान और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राथर महराज और पार्टी के दीगर लीडरान ने की। इस मौके पर सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों से सिर्फ सीनियर कारकुनान ही मौजूद थे। साथ ही कायदीन कारकुनों को हिदायत दी कि अपने अपने इलाकों में किसी तरह अपने मुल्क का तिरंगा लगाएं और हर घर तक पहल कैसे करें। इजलास के बाद रहनुमाओं ने कारकुनों के हमराह संबल कॉलोनी में रैली निकाली और नारे लगाए। ये तिरंगा रैली हमने निकाली है आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में और संबल से हमने स्टार्ट किया है आज। और यहाँ हर घर तिरंगा ये कैंपेन है और मोदी जी का जो नारा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। और हम इसी रैली को ये मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन कि कश्मीर में हर हाथ में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है। बीजेपी के कठुआ दफ्तर में हर घर तिरंगा के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें साबिक वजीर राजीव जसरोटिया ने भी शिरकत की। इस दौरान जसरोटिया ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है और हर घर पर जरूर लगना चाहिए। इसी बात को लेकर चलती थी, अब वो दुकान बंद हो रही है, इसलिए उनका विरोध वो पीछे भी करते हैं, आगे करते रहेंगे। मगर लोगों का जो एक स्पष्ट मन है कि भारत हमारा है और सब मिलकर कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस भारत के आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए सब काम करेंगे। और कश्मीर में भी जिस तरीके से उत्साह जो उमंग कश्मीर के लोगों में है, वो उससे यही लगता है कि कश्मीर के लोग सेपरेटिस्ट राजनीति से तंग होकर वो हिंदुस्तान के साथ अपना कंट्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर कश्मीर न्यूज।
वादी के हर जिले में तैयार करदा हैंडीक्राफ्ट्स की मुसलसल सप्लाई चीन को यकीनी बनाने के लिए आज शहर श्रीनगर में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान की इस मीटिंग का इनेकाद जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। यहाँ दस्तकारी से बनाई गई मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाए गए थे। रिलायंस और फ्लिपकार्ट भी इस इजलास का हिस्सा रहे। मुल्क के टॉप बायर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की और सेलर्स के साथ बराह रास्त एक इंटरैक्टिव सेशन किया। वज़ीर आज़म मोदी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तस्वुर को फरोग देने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। बुलाया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ से बायर्स आए हैं, बड़े बड़े रिटेल शॉप्स के ब्रांड्स आए हैं और ये आज हमारे जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स जो हैं ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाई है और इन प्रोडक्ट्स को कैसे सप्लाई किया जा सकता है, एक अश्योर्ड सप्लाई चेन बन सकती है जिसमें हमारे कारपेट्स हैं, हमारे पेपर मैश के प्रोडक्ट्स हैं, वुडन कार्विंग्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं जम्मू कश्मीर के, उनको एक अश्योर्ड मार्केट कैसे मिले। तो जो आज के हमारे यहाँ पे बायर सेलर मीट की थी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज टू आइडेंटिफाई ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट जो कि हम एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाएंगे एंड वी वांट टू शोकेस दीज प्रोडक्ट्स एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल। तो हमारा मकसद यही था आज यहाँ पे कि हम ऑल ओवर इंडिया से बायर्स लेके आए हैं जिसमें आइकिया है, रिलायंस है, फ्लिपकार्ट है। तो हमारे जो बायर सेलर्स हैं ये आपस में मिलें। स्किम्स हॉस्पिटल बिमना में आज एक नौजायदा बच्चे की मौत पर एहतजाज किया गया। बच्चे के अहले खाना का इल्जाम है कि ये बच्चा डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरा, जबकि अस्पताल इंतजामिया इसकी तरदीद कर रहा है। बिमना नूनदरिशी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को यहाँ 3 दिन पहले दाखिल कराया गया था और पैदाइश के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामाराई हुई। पेशेंट 4 बजे नॉर्मल डिलीवरी 6:30 कर नेबर तो वो सो डिलीवरी से 6:30 कर पेशेंट नेबर। वो नॉर्मल थी, वो सर्जरी थी, वो क्या था? ये कसाई है कि डॉक्टर है? हमें बोलिए, हमें बच्चा के बदले बच्चा चाहिए। अगर ये डॉक्टर आसन सीनियर डॉक्टर आसन यम कर गोड़े में ऑपरेशन यमो को 3 दिन में ऑपरेशन की यम खत यम येड़ पे जान बच्चे खत यम येड़ पे यमोर कंत्र के शिकमस में बच्चे सिर्फ दवा नामा 5,000 रुपये नाम एक दवा 6,000 रुपये तो अंदर के फ्रिजस में चूर दवा से नामा बदल दवा से नाम बदल वो क्या यमो थो फाइल थो चूर डॉक्टर्स गए सो थो फाइल चूर। ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। पहली बात, प्राइवेट हॉस्पिटल तो हम यहाँ से भेज नहीं सकते। इन केस हमको वैसा कुछ लगे हम हमारा अपना इंस्टीट्यूट है सबरा वहाँ रेफर कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। दूसरा है रिगार्डिंग पेट पे चढ़ना, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पेशेंट टेबल इतना ऊंचा होता है वहां, उसके ऊपर कौन चढ़ेगा? अब इसमें पर एब्डोमेन देना होता है प्रेशर, वो नॉर्मल डिलीवरी में ऊपर से दे देते हैं थोड़ा प्रेशर। वो तो वो जो ऑर्डरली वहां पे होता है वो थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर कर दे ताकि बच्चा नीचे आ जाए, वो नॉर्मल है, वो उसमें नहीं है। ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, वो कैसे हो सकता? फाइल किसको देनी? फाइल इज मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज विद पेशेंट्स ओनली। आई सॉ इट विद पेशेंट्स ओनली। मैंने भी वहां पे उसको प्रिलिमिनरी थोड़ा सा पेजेस अनफोल्ड किए, मैंने आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट। तो टेकिंग सो मोटो कॉग्निसेंस इसका लेके ना हमारे पास ना तो अभी तक अटेंडेंट्स आए हैं ना तो हमने, मगर टेकिंग इट्स कॉग्निसेंस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, विल सी क्या मसला है क्या है। वैसे हमारे हिसाब से अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी किया उसके हिसाब से तो ठीक चल रहा है, डॉक्टर्स ने भी मैनेजमेंट ठीक की है। कोई भी अपनी तरफ से ये नहीं, हॉस्पिटल कभी नहीं चाहेगा कि कुछ गलत हो जाए पेशेंट के साथ। आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में सिलेक्शन के अमल की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। इन नौजवान लीडरों ने बताया कि उम्मीदवारों में से कुछ ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में बेकायदगी हुई है। इन मुजाहरीन ने LG मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि वो पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दें। जो एग्जामिनेशन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की स्क्रैप की जाए, क्योंकि जब आप 8 साल तक लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे पाए तो 3 दिन के अंदर 696 लोगों को आपने किस बिहाफ पे, और जो मास कॉपिंग की जो फोटो वायरल हुई है, हाउस बोट्स में बैठ के एक दूसरे की मास कॉपिंग चल रही है, उससे बड़ा प्रूफ LG एडमिनिस्ट्रेशन को और क्या चाहिए?
जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीम ने जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने पर जोर दिया है ताकि मजमूई सतह पर जमहूरियत की बहाली हो सके। खान साहब बडगाम में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों और इंतजामिया के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए इंतखाबात का इनेकाद वक्त की जरूरत है। हकीम यासीन का कहना है कि जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए ताकि अवाम में बेगानगी को दूर किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए मरकज को ठोस इक़दामात करने चाहिए। हकीम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग रियासती असेंबली की बहाली के लिए तरस रहे हैं ताकि उनके शिकायत का कहीं तो इजाला हो। पीडीएफ चेयरमैन ने कहा कि क़यादत का बहरान है जिसे फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। ज़रूरी है क्योंकि एलिनेशन रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। लोगों के मसाइल जो उनको में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं आ रही है। इसका एक वाहिद मुतबादिल है कि जब तक कि यहाँ पर एक अवामी सरकार कायम न हो, तो इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर साहब को, इलेक्शन कमीशनर का काम है, मगर जब तक सरकार न चाहे, सरकार इस बारे में इक़दामात न करे, तब तक सब कुछ नामुमकिन है। इसलिए उनको चाहिए कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिल जीतने के लिए, यहाँ के बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, यहाँ के ज़मीनी हुकूक जो है उनको वापस देने के बगैर कोई चारा नहीं है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के ज़ेर एहतमाम पैनल डिस्कशन में शामिल थे। मोदी एंड 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम में जितेंद्र सिंह ने कलीदी खुतबा दिया। उन्होंने मोदी एंड 20 किताब हकीकी तनाज़ुर में पढ़ते हुए उसे समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम के दीगर पैनलिस्ट में साबिक सफ़ीर और स्कॉलर जी पार्थसारथी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरजीत एस भल्ला शामिल थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव जैन ने प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस पुस्तक को मैं तो ये कहूँगा कि एक स्टडी बुक है, एक रिसर्च सब्जेक्ट है, और समझने का अभिप्राय इसका ये है कि इसके पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व है मोदी जी का, who could inspire this model, who has the capacity to take out of box decisions। उन्हें कई एक नियम बदल डाले, 1600 नियम पिछले समाप्त कर दिए। इसके पीछे एक ऐसे व्यक्तित्व है who has the capacity to break the taboos of the past। स्पेस का विभाग गोपनीयता में काम करता था, उसको पार्टनर्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। Who has the capacity to convert government campaigns into mass campaign। स्वच्छता का अभियान का आह्वान करते हैं लाल किले से और जन जन ने इसे अपना लिया। और ये जो 20 वर्ष का कालखंड रहा है, मैं ये कहूँगा ये फाउंडेशन है, ये नींव है आने वाले 25 वर्षों की। जिस प्रकार की फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ 2015 में मोदी जी ने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, 6 वर्ष के भीतर अभूतपूर्व बदलाव होना। जहाँ 2014 से पहले मात्र 350 के लगभग स्टार्टअप थे, आज उसकी संख्या बढ़कर के 70,000 से अधिक हो गई, 100 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए, और विश्व में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान है। DPL बारामूला में एक पुलिस सर्विस मेले का इनेकाद किया गया ताकि आम लोगों को मुख्तलिफ सर्विसेज के बारे में आगाह किया जा सके। बारामूला पुलिस के मुताबिक कई खिदमात से बगैर किसी परेशानी के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मौके पर SSP बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट के अलावा दीगर पुलिस अफसरान और ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के लोग मौजूद थे। उन्होंने नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल पर इजाफे पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया और वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। माशरे से मंशियात के इस्तेमाल और दीगर समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए आवाम के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। और इसमें हर तरीके की हमने जो है डिपार्टमेंटल हो या नॉन डिपार्टमेंटल हो या लोगों के पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके, चाहे वो वुमेन्स इश्यूज़ हों, डोमेस्टिक इश्यूज़ हों, और इसके अलावा जो हमारे किसी के पेंशन का केस फंसा होता है, किसी का SRO का केस फंसा होता है, तो उस सब के लिए हमने यहाँ पे एक मेला लगाया कि जहाँ पे हम कोशिश कर सकें कि हम एक टाइम पे वन स्टॉप एक विंडो क्लियरेंस दे सकें, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे सकें, और एक साथ इन चीज़ों को हम हैंडल कर सकें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन का कहना है कि आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना सियासी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।
सज्जाद गनी लोन आज श्रीनगर में सोपोर असेंबली हलके से आए पार्टी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी लोन ने भी इस मौके पर खिताब किया और सज्जाद गनी लोन को वाहिद लीडर करार दिया। सज्जाद गनी लोन का कहना है कि आवाम खासकर नौजवानों को मुश्किल हालात के खतरात से महफूज रखना वक्त की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी ने कहा है कि नामुसाद हालात के दौरान पार्टी के कई लीडरान और वर्कर तशद्दुद की भेंट चढ़ गए, जबकि मुल्क और पार्टी के लिए काम करने वालों को फरामोश किया गया, जिसके चलते पार्टी अपने महलूक लीडरान और वर्करों के लिए एक यादगारी मेमोरियल कायम करने जा रही है, जिसमें इनके तस्वीर और पार्टी के तय खिदमात से मुंसलिक इतलात नस्ब की जा रही हैं। उधर पार्टी के रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार ने अपनी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसी पार्टियां खुद आवाम को मुख्तलिफ वादों और नारों के जरिए गुमराह कर रही हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवामी हयात हासिल है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डाक बंगला कोलगाम में डिस्ट्रिक्ट कमेटी की वर्किंग मीटिंग मुनक़िद हुई। जिला सदर अब्दुल मजीद लारमी, रियासती तर्जुमान अब्दुल नबी डार और इश्तियाक कमर समेत दीगर लीडरान ने शिरकत की। पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही आइंदा इंतखाबात के लिए नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो अपना रोल निभाएं। ने जो कुर्बानी दी है और इस झंडे के लिए, तब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सबको रिजेक्ट किया। उसने बोला कि अगर करना है तो हम इसी मुल्क के साथ करेंगे, और आज हमें ये टैग लगाया जा रहा है कि आप एंटी नेशनल हो। आज हमारे लीडरों को ईडी में बुलाया जाता है, आज हमारे लीडरों को वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसियों के थ्रू तंग किया जा रहा है। हमारे लीडरों को, हम भी खुद भी 7 महीने हाउस ये बंद थे, जेल में बंद थे, 5 महीने हमको वहाँ पे हाउस अरेस्ट रखा गया, और आज भी कई लीडर को सताया जा रहा है। तो हम भी दिखाएंगे कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी है, हमारे वर्करों ने क्या कुर्बानी दी, इस कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या कुर्बानी दी है। मंशूर आपके सामने है, पीएचडी का मंशूर ये है कि सारी तंजीमें जो JNK की इंटीग्रिटी, JNK की शनाख्त के लिए लड़ाई कर रही है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात करे कि जो हमसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए थे, हक दिया था, और जो हमारी एक आइडेंटिटी थी, उसको हम वापस लाना चाहते हैं। ये बोलना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर है या कहीं पर है, ये मुझे लगता है कब्ल वक्त होगा। मुझे लगता है लोगों तक हमको छोड़ना चाहिए, जब लोग डिसाइड करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस टाइम पे लोगों के अंदर एक वॉल्केनो है, और वो वॉल्केनो तब फटेगा जब वो बैलेट बॉक्स पे अपने वोट जो डालेंगे, और उस टाइम पे जो मुश्किलें होंगी वो बीजेपी होंगी, क्योंकि वो उस टाइम पे चक्कर में आ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। ट्रैफिक पुलिस ने चालान कॉपी एक ऐसे शख्स को भेजी जिसने जम्मू का सफर किया ही नहीं था, वो डोडा में ही था। जिला डोडा के तंजील राथर को मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाड़ी का चालान मौसूल हुआ तो वो सदमे में आ गया। टेक्स्ट मैसेज में वाज़े लिखा है कि 24 जुलाई को तंजील की कार ने रेड सिग्नल तोड़ा। डोडा से जम्मू का फासला 180 किलोमीटर है। गाड़ी मालिक तंजील का कहना है कि वो काफी अरसे से जम्मू नहीं गया है। तंजील ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो ये मालूम करें कि कोई उसके नंबर प्लेट तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। डोडा पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इस चीज से शॉक हो गया कि भाई मेरी गाड़ी अगर मेरे गैराज में खड़ी है तो गाड़ी मेरी वहां कैसे पहुंची। मैं एक चीज से शॉक हूं कि अगर मेरी गाड़ी यहाँ है तो इस नंबर से चालान कैसे हो सकता है। या तो इस नंबर की नंबर प्लेट से कोई और गाड़ी यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है इस नंबर का, या तो कोई और बात है, या तो ट्रैफिक की कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही है। ये कैसे हो सकता है। हम तो कानून का पालन करते हैं। अगर हमको ये साबित हो जाए कि ये गाड़ी वाकया यही गाड़ी थी तो हम कानून के खिलाफ नहीं है, हम ये चालान भरेंगे। लेकिन इस सूरत में कि ये गाड़ी जब डोडा में, चालान जम्मू में, मेहरबानी करके इसके लिए कोई ऐसी इंक्वायरी की जाए जिससे पता चले कि कहीं यही गाड़ी, यही शेप, यही नंबर प्लेट किसी दूसरी गाड़ी पे तो नहीं है कोई गलत काम भी कर सकती है कल। तो हम इसके लिए खबरदार होना चाहते हैं। अनंतनाग के डूरू शाहबाद में जारी चिनार विमेंस क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हुई है। ये लीग फौज की 19 RR और म्यूनसिपल कमेटी डूरू के इश्तराक से मुनक़िद हुई। लीग में वादी भर की 12 टीमों ने शिरकत की, जबकि फाइनल मैच में अनंतनाग ने कोलगाम की टीम को हराकर चिनार कप को अपने नाम कर दिया। इस मौके पर 2 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर AS बंदेर के अलावा म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग के
व डूरो के सदूर हिलाल अहमद शाह और मोहम्मद इकबाल के अलावा दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। फौज के मुताबिक इस लीग का एहतमाम वादी में ख्वातीन क्रिकेट को फ़रोग़ देने के अलावा ख्वातीन खिलाड़ियों को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। फौज की इस कोशिश की बड़े पैमाने पर सराहना की गई। कुछ लोग नेगेटिव पीपल होते हैं, वो जो उसकी वजह से लड़कियां डरती है काफी, लेकिन लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, उनको अपना गेम शो करना चाहिए, जीतना चाहिए। ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा लड़कियों को ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उतनी ज्यादा लड़कियां आएंगी आगे खेलने के लिए। नेशनल प्लेयर माई सेल्फ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग टू गेट टू इंटरनेशनल लेवल एंड आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट। मैं जो यहाँ के लोकल्स अनंतनाग का टीम और कुलगाम का टीम, बारामूला से टीम आए थे, कुपवारा से टीम आए थे, लारनू कोकरनाग से टीम आए थे, रूरल से भी आए थे, अर्बन से भी आए थे। मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और 19 RR के जितने भी जो CO है, यहाँ पर मेजर कृष्ण है, यहाँ पर ब्रिगेडियर अजय जी है, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनके पूरे टीम को जिन्होंने पीसफुली इस आज जो फाइनल था यहाँ पर अंजाम दिया। म्यूनसिपलिटी के साथ जो इन्होंने यहाँ पर जो टूर्नामेंट यहाँ पर इसका इनकाद किया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो हमारी जितने भी हमारी छोटी बच्चियाँ हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, जिनका इसमें कहीं ना कहीं रहता है कि हम भी आगे जाए, हम भी अपने टैलेंट का कहीं ना कहीं अपना दिखाए लोगों में, जिनको आगे जाने का मौका मिले। मुहर्रमुल हराम के महीने की आमद के साथ ही नवासे सरवरे कायनात हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी याद आती है। आज 1400 से ज़ायद बरस गुजर जाने के बाद भी लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की ये ख़ास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर का ज़िला बडगाम वादी कश्मीर में शिया आबादी का मरकज़ माना जाता है और मुहर्रम की आमद के साथ ही यहाँ की सड़कें सियाह परचमों का लिबास पहन लेती हैं। अज़ाखाने सजाए जाते हैं ताकि इमाम हुसैन की याद और उनके पैगाम को आम किया जा सके। सड़कों पर बच्चे नौजवान बैनर्स लगाते हैं जिन पर वाक़े करबला तहरीर किया जाता है ताकि करबला का पैगाम आम किया जा सके। इन नौजवानों से अगर पूछा जाए कि बैनर्स लगाने का मकसद क्या है तो इनका साफ जवाब है कि वो इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमने मोमिनों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए मुतवातिर आयतें फ़राहम करी है जिनसे उन्हें हमारे वजूद का पता मिले। इसी तरह हम ये बैनर्स लगाते हैं, ये अलम बुलंद फरमाते हैं ताकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये बैनर से अलम आयतें बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी जान खुदा के राह में क्यों दी। बैनर लगाना ये छोटी सी बात नहीं होती है। बैनर इसमें एक मैसेज होती है और जो हम पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं। 1400 बरस गुज़र गए तो तब से हम ये अज़ा खाना अभी चला रहे हैं, नोहाखानी करते हैं, मजालिस सजा रहे हैं, आज़ादारी करते हैं। तो ये ज़रूरी है, पूरी दुनिया को हमें मैसेज देनी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या दिया हमारे लिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पाथ को फॉलो करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजालिस के साथ साथ जुलूस निकाले जाते हैं, सबीलें लगाई जाती हैं। मकसद यही है कि जो दावत नवासे सरवरे कायनात ने करबला के मैदान में दी थी वो लोगों तक पहुंचाई जाए। जैसे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हम आज़ादारी करते हैं, चाहे मजालिस बर्पा करें, चाहे बैनर्स लगाएं, चाहे जुलूस आए अज़ाज़ुल जना व अलम शरीफ का जुलूस जो होता है वो निकालें। उनका एक ही मकसद होता है कि जो दावत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने करबला में दी वो लोगों तक पहुँचाया जाए। और वो पैगाम जिसे हम इस्लाही पैगाम भी कह सकते हैं, जो ख़ुद सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं निकला हूँ इस्लाह करने के लिए, तो वो हम इन तरीक़ों से पहुँचा सकते हैं। वाज़ेह है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने ज़माने को ये दर्स दिया कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, और आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी ज़माना इमाम हुसैन को याद कर रहा है। मुहर्रमुल हराम का महीना नज़दीक आते ही अज़ादारों के दिल गमज़दा होते हैं, अज़ा खाने सजाए जाते हैं, सड़कों पर बैनर लगाए जाते हैं और उस अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है जो इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा ने करबला के मैदान में पेश की। आज
1400 साल गुजर जाने के बाद भी अज़ादारों के दिल में इमाम हुसैन के तई मोहब्बत है। इमाम हुसैन के गम को याद कर रहे हैं और इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में अज़ादार जगह जगह स्याह परचम नस्ब कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के सोनम पाटन में परचम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से 40 फुट बुलंद परचम नस्ब किया गया। अज़ादारों का कहना है कि इन परचमों, बैनरों और झंडों से करबला की अजीम कुर्बानी की याद होती है। करबला को अजीम कुर्बानी सिर्फ इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुई है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने सोनम में अज़ादारों के साथ बातचीत की। कश्मीर के पटन के सोनम में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 फुट ऊंचाई जो हज़रत अब्बास के नाम से जो परचम यहाँ पे बुलंद किया गया, नस्ब किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊंचा परचम जो है हज़रत अब्बास के नाम से है और इस तरह ये शोहदाए करबला को याद किया जा रहा है। हर जगह जहाँ पे भी शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पे इसी तरह जो झंडे हैं, परचम है, बैनर्स है, ये चश्मा किए जाते हैं, लगाए जाते हैं और उन पर अशार और अक़वाल लिखे जाते हैं जिसकी शोहदाए करबला की तशहीर होती है। मुल्क की वफा के हज़रत अब्बास शाहीन हुस्न वफा पे मशक व अलम दुगवा हैं। जब हम करबला की तारीख़ पढ़ते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की बका के लिए मैदान करबला में एक अजीम कुर्बानी पेश की और वहाँ पे उनके भाई जो अलमदारी का मरसब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास था, ये अलम परचम इसलिए यहाँ पे नस्ब किया गया है। ऊंचाई इसकी ये हमें बताती है कि इंसानियत की बका के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए जो अलम करबला में बुलंद किया गया है वो हमारे लिए मशाल राह है। इस्लाम की बका के लिए, इंसानियत के लिए और उस इंसानियत और उस कुर्बानी को याद करना, यही अलम और ये झंडे जो लगाए जाते हैं इसकी एक निशानी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन। 3 साल के तवील वक्फे के बाद जिला पुंछ के तहसील मंडी में वाक़ श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। पहले बैच में गुजरात, बंगाल और उत्तर प्रदेश से हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन पूजन करने पहुंचे। श्री बुद्धा अमरनाथ के यात्रियों का मंडी शहर पहुंचने पर मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसके बाद अकीदतमंदों ने कतारों में खड़े होकर रसूमात अंजाम दी। तमाम अकीदतमंदों का कहना है कि यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा भी बहुत अच्छा है और वो बार बार यहाँ आना चाहते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से आई हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये जो यात्रा शुरू करवाई है कोरोना के बाद यात्रियों को बहुत बड़ा लाभ मिला। पहले हमारे सौराष्ट्र को लाभ लिया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। और हम ये सब यात्रा बहुत खुश है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का जो आयोजन है बहुत ही प्रशंसनीय लायक है। मोरबी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, साथ साथ यहाँ के लोगों के प्यार भी बहुत अच्छा है। भोलेनाथ दर्शन के लिए हम सब आए हैं, प्यार बहुत प्यार मिला है। हम बहुत खुश हैं। हमको भी अच्छा लगा भोलेनाथ का, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं पड़ी, सब दर्शन करने में मजा है, सब लोग भाई जैसे बड़े हैं। जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन नुज़रत इशफाक ने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामिर के हमरा मुहर्रम के इंतजाम का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने ज़िले के डब इलाके का दौरा किया। उन्होंने इमाम बाड़ा डब में तमाम उमूर के बारे में जानकारी हासिल की और वहाँ मजालिस और जुलूस के बगैर किसी परेशानी के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि लाइन डिपार्टमेंट्स को पहले ही हिदायत दी गई है कि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ निभाकर तमाम तरह के इंतजामात को यकीनी बनाएं। मुहर्रम के शुरू होने के साथ ही मुख्तलिफ रसूम के अंजाम दही के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ताहम ज़िला पुलवामा के गांगोह में शिया आबादी को मुश्किलात का सामना है। गांगोह के तारीख़ी इमाम बाड़ा से मुतसिल होकर गुजरने वाले आबपाशी नाले में गंदगी के ढेर होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांगोह से गुजरने वाले इस नाले में कई बरसों से महकमा आबपाशी की जानिब से सफाई नहीं की गई है। इसकी गंदगी से पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है, जिससे इमाम बाड़ा को आने वाले अज़ादारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जबकि गांगोह में स्ट्रीट लाइटें नस्ब न होने से भी मकामी आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फराहम किया है। हमारी एक गुजारिश है, जो इमाम बाड़ा के पीछे बहुत बड़ी एक नदी है,
उसकी अभी तक सफाई नहीं हुई। जहाँ से रोड भी है, लोग आना जाना है, लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, लेकिन बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, ये कभी सफाई नहीं हुई। इसलिए मुझमना गुजारिश है हमारी तरफ से, इस नदी को अच्छी तरह से सफाई किया जाए ताकि लोगों को ज़ियारत के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। लकड़ बल्ब कहीं आज सा बल्ब मगर तम दियो बड़ यम जन पता लगन कुन हम बत हेको पाने लगित रुपयन मोहन बट सो लगन कुन इसलिए दियो सा बज बत आज के पत् तमो दोप वो क्या करो तो यह ये बिलाल साहबन जन चेयरमैन। बीजेपी के सीनियर लीडरान सज्जाद रैना और मीर सरवर हुसैन ने मुहर्रम के हवाले से की गई तैयारियों पर जिला पुलवामा के गांगो इलाके का तफसीली दौरा किया। मीर सरवर हुसैन पुलवामा के नायब बीडीसी चेयरमैन भी हैं। उन्होंने गांगो में मुल्हका देही इलाकों में मुहर्रम के पेश नज़र दस्तयाब कराई जा रही सहूलियात का जायजा लिया। दोनों लीडरान ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इन मुतबरक अयाम में लोगों को पीने के पानी और बिजली के अलावा राशन की सप्लाई मुहैया रखें। इस मौके पर पुलवामा में बीजेपी के जिला सदर सज्जाद रैना और मीर सरवर हुसैन ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात की और इनकी मुश्किलात से आगाही हासिल की। हर करबला के बाद आज मुहर्रम शुरू होने वाला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया है हक और बातिल के लिए, उसे हक के लिए अपनी जान और आलो अयाल दिया। और हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि इमाम हुसैन ने किस तरह अपने आलो अयाल को हक के लिए पेश किया। हम भी चाहते हैं उसी तरह अगर हमारा आलो अयाल भी हक के लिए पेश हो जाए, नजराना हो जाए इमाम हुसैन को, वो काम नहीं है। यहाँ पे आए हैं और हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया है। जिस तरह यहाँ पे अरेंजमेंट्स हुई है, हम चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा हो। यहाँ की पीएचई, पीडीडी, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट से हम चाहते हैं कि वो 10 दिन यहाँ पे काम करें। वज़ीर आज़म मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पावर सेक्टर की नई तकसीमकारी स्कीम का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वेमेन अनंतनाग में एक मुख्तसर ऑनलाइन इंटरेक्शन का एहतमाम किया गया। उज्ज्वल भारत तकरीब के सिलसिले में यह नज़म किया गया था। NHPC के चेयरमैन AK सिंह, KPDCL के चीफ इंजीनियर DC अनंतनाग, DDC चेयरमैन और SSP के अलावा दीगर मौजूदीन यहाँ शरीक थे। रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा, वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया। पावर जिसकी जरूरत ही मिलती है, क्योंकि पावर हम नहीं देते, हम पावर बना के देते हैं। जैसा को पता है कि 12% फ्री पावर स्टेट को मिलता है, तो 12% पूरी जनरेशन के यहाँ मिलता है। फिर स्टेट की जितनी ज़रूरत होती है वो नेशनल जो लोड डिस्पैच सेंटर है, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलती रहती है। बिजली में कमी है ही नहीं है, पूरे देश में बिजली की कमी नहीं है। कमी वहाँ है कि जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं डिस्कॉम को, तो कट जाता है, या उनका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है कि बर्फ़ पड़ती है, गांव में तारें जल जाती हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, तो इसकी वजह से बिजली की कमी नहीं है देश में। उस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? उस सिस्टम के लिए भारत सरकार बहुत सारे एड दे रही है स्टेट को, स्टेट काम भी कर रहा है और आपने देखा कि उसमें बहुत सुधार भी आया है, अभी बहुत सुधार आया है और उसमें निरंतर काम चल रहा। हो सकता है कि अगले जाने तक सारा 100% सुधार हो जाए। DDC चेयरमैन पुलवामा बारी अंदराबी ने जिला पुलवामा के गांगो इलाके का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लिया। बारी अंदराबी ने गांगो में लोगों से मुलाकात की और इनके मुतालबात को सुना। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मुतबरक अय्याम में आम लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया रखी जाएगी। से पानी का जो सप्लाई है तो लगातार रहनी चाहिए, बिजली की जो सप्लाई है तो ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी वाला जो इशू है तो कुछ ना कुछ एक टीम रहनी चाहिए, या सफाई का जो खास ख्याल रखना पड़ता है। सीनियर सियासी लीडर और साबिक MLA गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने जिला गांदरबल के यंगोरा में कारकुनों की मीटिंग की सदारत की। इन्होंने आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए तनदेही से काम करने की कारकुनों को तलकीन की। अवाम से रब्ता करते हुए उनकी शिकायत का इजाला करने को कहा। इस मीटिंग के बाद शेख अशफाक ने स्टोनकारी होल्डर्स और इलाके के दीगर वफूद से मुलाकात की, उन्हें मुनासिब इक़दामात कराने का यकीन दिलाया।
किश्तवाड़ में पीडीपी के एसटी सेल के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर फिरदौस टाक ने कहा कि वादी चनाब के गुजर और बकरवालों का इस्तेसाल होता रहता है और वह बुनियादी सहूलियात से महरूम रहते हैं। फिरदौस टाक के मुताबिक कबायली तबक़ात को गुर्बत से निकालने के लिए उन्हें बाअख्तियार बनाने की ज़रूरत है। फिरदौस टाक के मुताबिक गुजर बकरवालों की अक्सरियत वाले इलाकों में पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन मकामी लोगों को इन प्रोजेक्टों में डेली वेजर का काम भी बड़ी दिक्कत से मिलता है। कश्मीर के अवाम और ख़ासकर किश्तवाड़ की अवाम के लिए और किश्तवाड़ की सियासी जमातों के लिए ये सबसे बड़ा काम है कि वो इस तबके के लिए काम करें, इस तबके को उठाने के लिए काम करें। उसी ज़िम्मन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जो हमारा एसटी सेल है उसको मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस कौम के पास खुद ताकत ना हो, खुद आवाज़ ना हो, तब तक इनको उस मुफलसी और लाचारगी से बाहर निकालने में बहुत सी दुश्वारियाँ आएंगी। बांडीपुरा के अहम शरीफ इलाके के नज़दीक होदबल नामी गांव में 26 जुलाई 2019 को बादल फटने के एक वाक़े के दौरान बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। गांव में एक नाले के दहाने पर गुरेज से आए 6 कम्बों के वाबस्ता अफराद का कहना था कि वो कई साल कबल गुरेज से आकर यहां आबाद हुए। ताहम न सिर्फ गांव की सड़क नाकाबिल आमदरफ्त है, बल्कि 2019 में बादल फटने से हुए नुकसान को देखकर आज तक नाले के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई। मकामी लोगों का कहना था कि बादल फटने के वाक़े को अगरचे 3 साल गुजर चुके हैं, ताहम इनकी हिफाजत के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। होते हम खड़ा होते, हम जीसी साहब के पास 70 बार गए, हमारी फाइल तैयार होगी, फाइल में हमारा हो गया अमाउंट 370 फुट बंड 14 लाख, इसका पैसा होते हैं। आजकल बोलते हैं फंड्स नहीं आ गए, हम जाते हैं फंड्स, जब बारिश होती है हम बच्चों को खड़ा करते हैं रात को आधी नींद में, रोते रोते बाहर कोई साया छतों के नीचे जिस जगह सैलाब नहीं आते बच्चे लेकर 2 बजे भी बैठते हैं। हम सैलाब के नीचे 6 घर हैं सर, हम कोई पूछ पाए नहीं। डीसी साहब के पास हम दोनों गए सर, तकरीबन 70 बार दरख्वास्तें लेकर, डीसी साहब ने भी कोई गौर हमारा नहीं किया। सर हमारे हालात देखो, हमारा बंड भी उतर गया, घर के सामने अंदर पानी भी गया सर, किसी ने हमें पूछा नहीं। कल देर रात को जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में आने वाले गांव पठाना तेर में गरीब खानदान का कच्चा मकान गिर गया, जिसके बाद मोहम्मद सलीम खान का कुंबा बेघर हो चुका है। उन्हें खुले आसमान तले जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मुतासरा खानदान ने जिला इंतजामिया और SDM से इमदाद खास कर टेंट फराहम कराने की गुजारिश की है। इस गरीब शख्स का इल्ज़ाम है कि BPL जुमरे में होने के बावजूद उसे आज तक PM आवास योजना में शामिल नहीं किया गया। कंपनी आदम ताजरी बारिश सीधा उसने भी साला कुछ नहीं हो सकिया था। असा अपनी खाली जान अपनी बचाई था, साज जो ये थल्ला भैया बारे में कुछ ना कुछ अगर मिली जाना असंगी कोई टेंट शेंट नहीं, कोई ना कोई सहूलत हो जानी, बाल बच्चे नहीं ला किसी जगह ने बीच कोई सेफ जगह भी किसी ने मकान ने ऊपर ही रखना पड़ा। मेरी जिला तरक्याती कमिश्नर साहब से और SDM मेंढर जनाब जहांगीर खान साहब से ये गुजारिश रहेगी कि मोहम्मद नसीम खान जो कि निहायत ही गरीब शख्स है, उसको कम से कम जो है एक टेंट फ्राहम किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को जो है वो आराम से वहाँ पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे News 18 उर्दू के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।